सब लोग तरन तारण से ही हो? ओके, कौन कौन तरन तारण से नहीं है? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, किथों? हरि के चारों मॉड्यूल्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਥਾ ਰੂਲ ਹੈ ਵੈ ਚੁੱਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1-on-1 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, 1-on-1 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ठीक है, कुछ भी दिमाग च आ रहा है, कोई भी डाउट है, कितने एग्जाम किवें करिए, कुछ भी पूछना है पूछ सकते। ऑलराइट, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग मैं जानना चाहना कि पीटी करके कैनेडा कौन कौन जाना चाहता है? जस्ट रेज योर हैंड। 1। ओके, पीटी करके ऑस्ट्रेलिया कौन कौन जाना चाहता है? That's great. So ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਟੀ 100% ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਲਾਈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਿਡਨੀ, ਮੈਲਬਨ ਕਾਲਜ, ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਸਟ ਰੇਜ਼ ਯਰ ਹੈਂਡ। ਗ੍ਰੇਟ। नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ग्रेट। सो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसना चाहना कि जे ਤੁਹਾਡੇ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ परसेंटेज 80% ਜਾਂ 75% ਤੋਂ ਅਬਵ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 79+ ਤੱਕ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ। ਨਾਰਮਲੀ 27 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। स्कॉलरशिप लैके जाओगे, 80% स्कॉलरशिप भी मिल गई तो 80% खर्चा घट गया। एंड योर पेरेंट्स फील प्राउड कि साडा बच्चा स्कॉलरशिप लैके इत्थों ही गया, उन्होंने उत्थों नहीं मिली जाके, बिकॉज ही इज अ कैपेबल इनफ। हर कोई कर सकता ना, कर सकते हो ना? वो एक जनून होंदा है कि जिंदगी च कुछ करना है, आही टाइम है, कर लो। ठीक है, ओके। द सेकेंड पार्ट, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਂਡਮਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਬੱਚੇ? 2 ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ 2 ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁਕੁਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇੱਕ SRK ਮਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ ਯੋਰ ਓਨ ਬਾਈਕ ਔਰ ਓਨ ਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ। ਪੁੱਛੋ। ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਗਮਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪ ਪਟਕਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾउड। पटका कैप इज नॉट अलाउड। ठीक है, भुल के भी पा के ना जाए। सैकेंड, जो तुसी दस्तार छोटी बननी है बन सकते हो, बट पटका इज नॉट अलाउड। ओके, सो कुछ बच्चे ने जेडे कि इस टाइम परमीश वर्मा बन चुके हैं बट पासपोर्ट तो उन्होंने क्लीन शेप ने। मेक श्योर परमीश वर्मा ना बन के जाओ, पहचाने नहीं जाओगे। एंड फॉर गर्ल्स एनी एक्सेसरी एंड बॉयज no phones are allowed, no Apple watches or smart watches are allowed, no digital analog watch allowed, कड़ा भी नहीं allowed है। जो तुसी घरों चले हो मेक श्योर अपने नाल उन्नी की एक्सेसरी लो जिहड़ी बहुत जरूरी है, अदरवाइज उत्थे तुहानूं लॉकर च रखनी पेगी। और तुहाडे लई बहुत कन्वीनियंट है कि उत्थे सानूं समान रखने वास्ते एक डेडिकेटेड लॉकर मिलेगा।
गॉट इट? ड्यूरिंग द टेस्ट सेंटर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, रेज योर हैंड, बोलना नहीं उच्ची सारी। टीसीएम उसे वेले ਤੁਹਾਡੇ को आके पूछेगा भी बच्चे ਤੁਹਾਡੀ दिक्कत की है। बहुत सारे बच्चों ਨੂੰ ਮਾਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਮਾਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲੋਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਇੰਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਟਾਫਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਇੰਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ओके, समय लग गई? ओके, किसी ने कुछ सवाल पूछना है? नहीं? जाइए, हो गया? कुछ भी माइंड में आ रहा हो। ओके, सो आई नो आई ट्रूली बिलीव तुसी शर्मा रहे हो। पैटर्न तो शुरू करिए। स्पीकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? बच्चे की दिक्कत आती है रिपीट सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ? some words are not clear मतलब कि कैप्चर नहीं होंगे। am I right? okay, किन्नू किन्नू दिक्कत आती है? रेज योर हैंड। एक, वेरी गुड, सारे मुंडे आ जाओ, वेरी गुड। ओके, किन्ना परसेंट कैप्चर नहीं होंगे? 50% कैप्चर हो जाता? लाइन जो पूरी बोली होवे ओदा अद्धा हो जाता है कैप्चर, बट वो पूरा क्यों नहीं होंदा? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੈलेंज ਆ? समझ नहीं आती या भुल जाते हो? माइंड चो भुल जाते हो, करेक्ट? ओके, आई वांट 5 पार्टिसिपेंट राइट हेयर, इत्थे खलोणगे, आ जाओ आपे, नहीं तो रजिक को मैं बोलूंगा, रजिक लेके आएगा खुद ही। गर्ल्स यस, हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। दिक्कत हो रही है ना? अब ट्राई करने में क्यों शर्म आ रही है? कम ऑन गाइस, कम ऑन, लेट्स डू इट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, या वेरी नाइस। 1, आई नीड 4, 2, वेरी गुड, वेरी गुड, 3, आ जाओ इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। ओके, 3, 4, 5, ओके ओके। सो ये डेली का एक एग्जाम्पल सेट करने वाला हूं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुसी सारे जाने इत्थे ध्यान दोगे। तुसी उन्हां वाल ध्यान नहीं देना, तुसी मेरे वाल ध्यान देना। एंड रसिक, आई नीड योर सपोर्ट, ऑलराइट, यू हैव टू बी देयर। सो गेम इस तरीके दी है कि इस गेम का नाम है चाइनीज विस्परिंग। कदी देखा दे बारे गेम किहो जी हुंदी है चाइनीज विस्परिंग? ओके, सो मैं रजिक दे कान दे विच एक लाइन बोलांगा, रजिक वो सेम लाइन इस बच्चे दे कान च बोलेगा एंड यू बच्चे अगेन उनके कान में बोलोगे, आगे आप उनके कान में और आप उनके कान में और आप उनके कान में। कोई एक दूसरे की लाइन सुनेगा नहीं एंड यू आर सिटिंग अ वेरी क्लोज, इन अ वेरी क्लोज, ओके। एंड यहां से वहां लाइन पहुंचाने में आपको सिर्फ मिलेंगे 20 सेकेंड्स, ठीक है? 20 सेकेंड्स, गॉट इट? रजिक, आर यू रेडी? Please submit your assignment electronically. Oh, I forgot I'm wearing mic. Time is over. अभी नहीं, मैंने पूछा, टाइम इज ओवर बोला था। ओके ओके, बच्चे आप मिडिल में थे, आपने क्या सुना? ऑलराइट, आपने क्या सुना? बच्चे आप जोर से बोलोगे, सबको सुनाई दे। हाँ, यस।
रजिक अब और जोर से बोलेगा। रजिक क्या बोला था? Please submit your assignment electronically. लाइन था प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। सबमिट का संबंध कैसे बन गया? और यू नो व्हाट, एक वर्ड के गलत होने की वजह से कंटेंट में 1 पॉइंट जाएगा। ऑलराइट, एंड आई वांट टू बी सीटेड बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। सो मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता था कि क्या पे गलतियां होती हैं। इफ यू वांट टू ट्राई अगेन, अब इन 500 बच्चों ने तो गलत बोल दिया, अब मुझे 5 बच्चे और चाहिए जिनमें कॉन्फिडेंस है कि मैं सही सुनूंगा। फटाफट आ जाओ, फटाफट, नहीं तो रजीक उठाएगा। अब इस बार लाइन गलत नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर। हाँ भाईजान, आप पे भरोसा है। आई नीड 2%। चलो जी, आ जाओ जी। 1%, आई वॉन्ट 1% फ्रॉम दिस लेन, द लास्ट वन। ओके, सो द लाइन इज रेडी। मैं रजिक के कान में फिर दोबारा बोलूंगा, ठीक है? तैयार हो? घबराहट तो नहीं हो रही? तगड़े हो? पूरी पूरी? ऑल सेट? जोर दी बोलो, ऑल सेट? ओके, गलत नहीं होनी चाहिए। The travel desk is on 3rd floor. The travel desk is on 3rd floor. वहां से भी बोल दो, बोल दो, बोल दो। बोल दे आगे। An average American family consumes 1000 liters of water in a day. Time's up. Okay, 10 seconds up. बताओ अब। ये 4 words. Yes. 1 liter of water. All right. Very good. 1 liter. Mistake. Yes. बच्चे उच्ची बोल, उच्ची। All right. इसमें एक वर्ड की गलती हुई है, बाकी सारा सेंटेंस ठीक था। 1000 liters of water. हुआ ना मिस्टेक, बट यू आर वेरी एक्टिव। आई रियली अप्रिशिएट, क्लैप योरसेल्फ। अब हुआ क्लैरिटी? अब हुआ ना लिसनिंग एक्टिवनेस? मिली है ना? थोड़ा सा सुन के एकदम से आपने कैप्चर कर लिया। अब और एक और लाइन बोलूं? आर यू रेडी? ओके। The library shifted on the 3rd floor by the admin block. Yes. Correct. 100% right. 100% right. और कोई ट्राई करेगा? और कोई? So guys, ये कंपटीशन क्रिएट हुआ ना, तो रियल लाइफ में भी, रियल एग्जाम में भी आपको ऐसा ही कंपटीशन क्रिएट करना है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर लिसनिंग स्किल्स। आई रियली अप्रिशिएट यू बॉय, ठीक है? एंड आई रियली अप्रिशिएट यू बोथ। आपने 4 वर्ड्स कैप्चर करे। 1000 का 1 लीटर, 1000 का 1 लीटर नहीं करना, ओके? ऐसे ही सेंटेंसेस रियल एग्जाम में आते हैं। एंड सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें खुद रियलाइज नहीं होगा हमारी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, हम नहीं इंप्रूव कर पाएंगे। तो जैसे आप अभी मिस्टेक कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू कि रजिक के सामने खुल के मिस्टेक करो, वो उतना ही आपको सिखाएगा, या आपकी ट्रेनर्स, ओके? इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है।
मैंने पहले बताया था एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी, मेरे साथ। ओके बच्चे, उसमें आपको अगेन एक फॉर्मेट यूज करना है जिसका नाम है DMDTDS। अपने कॉपीज में लिख लो DM। बच्चे मेरे को अपनी कॉपी देना, पेन देना। सो आपको ऐसे लिखना है DMDTDS। लिखा ये DM, D फॉर डेनमार्क, M फॉर या थैंक यू, DMDTDS। ये रिटेल लेक्चर का एक बेसिक फॉर्मेट है जिससे आप रिटेल लेक्चर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? DMDTDS। D स्टैंड फॉर डिस्कस, M स्टैंड फॉर मेंशन, D स्टैंड फॉर डिस्क्राइब, T स्टैंड फॉर टॉक्ड अबाउट, D स्टैंड फॉर आगे अगेन डिस्कस, एंड S स्टैंड फॉर समराइज। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। एक बच्चे की फोटोग्राफ आई आपके सामने, बच्चा जमीन पे बैठ के रो रहा है और उसने अपना हेड क्लोज कर रखा है ऐसे बाजुओं के बीच में, और ऑन दी अदर साइड आपको ऑडियो फाइल में ये सुनाई दे रहा है कि एक लड़की है जो डिप्रेशन के ऊपर रिसर्च कर रही है, और उसने रिसेंटली अपने PG प्रोग्राम में डिप्रेशन के ऊपर एक रिसर्च पे काम करना शुरू करा है, जिसमें उसने आइडेंटिफाई करा है कि 18 से लेके 23 साल तक की एज वाले जो बच्चे होते हैं दे गेट डिप्रेस्ड वेरी क्विकली। अब उसके बेसिस पे सुसाइडल रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज सोसाइटी में जजमेंट्स बहुत होनी शुरू हो गई हैं। अब उस केस में ऐसा ही सिनेरियो एट द एज ऑफ 31 to 35 में भी देखा जा रहा है, जब वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं टाइम पे। और इसके पीछे मेन रीजन ये था कि डिप्रेशन में दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेसिक नेसेसरी नीड्स, जो लग्जरी नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए अगर वो नहीं टाइम पे उनको मिलता, दे गिव अप एंड दे गेट डिप्रेस्ड टू शोकेस द लग्जरियस लाइफ टू अदर। तो इस बेसिस पे बच्चों को काउंसलिंग सेशंस दिए जा रहे हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। अब ये पूरी की पूरी सेंटेंस आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ सुनने को मिला, ये आपको इजी इसलिए लग रहा है बिकॉज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, पंजाबी में भी बोल सकता हूँ, बट अगर इंग्लिश में बोला जाए कैन यू गेट एनी कीवर्ड्स? नहीं ना, तो उसके बेसिस पे ये फॉर्मेट काम आता है। डी स्टैंड फॉर क्या था? डिस्कस। इन दिस lecture the speaker discuss about the depression. After that he mentioned that the age of 18 to 25 they got depressed. Why? उसके पीछे रीजन क्या था? Because they are offended by the luxury life. वो एक पॉइंट ऐड हो गया। अगेन ही डिस्कस कि इसके बावजूद भी वो डिप्रेस ना हो, काउंसलिंग सेशंस या कुछ भी बोल लो। एंड अगेन डी पे और एस पे आपको कंक्लूजन लिखना है कि ऐसा क्यों होता रहा है और उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ हैबिट, करेक्ट। एंड या तो आप अपने तरफ से कोई भी ऐसी एड लाइन कर सकते हो कि डिप्रेशन इज नॉट अ बिग डील। बहुत सारे बच्चे जो हैं या लोग हैं वो डिप्रेशन से ओवरकम हो जाते हैं, निकल आते हैं बाहर। तो कितना सही फॉर्मेट है जिसपे आपको आगे कीवर्ड नहीं बोलना। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम, दिस लेक्चर इज अबाउट दिस, ही टॉक्ड अबाउट दिस, ही टॉक्ड अबाउट दैट, ही टॉक्ड अबाउट दिस, यही करते आए हो। अब उसकी जगह पे ये फॉर्मेट करोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, 15 में से 15। गॉट इट? समझ लग गई? समझ लग गई बच्चे? ऑल क्लियर? ओके, दैट्स इट। और कोई दिक्कत? बच्चे लिसनिंग का मुझे बताओ आपके टेंटेटिव टाइम कितना है? नॉर्मल टाइम कितना मिलता है लिसनिंग में? थर्टी मिनट्स फॉर रीडिंग, 20 मिनट्स फॉर राइटिंग, 32
42 minutes for speaking. Correct? अब बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है. I would strongly recommend you MCQs, multiple choice, multiple answer और single answer में do not waste your much time. उसका वेटेज बहुत कम है. Alright, जो बच्चे ऐसी आइटम टाइप्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्कोर गाइड रजिक के पास है. वो आपको स्कोर गाइड देगा जिसमें हर एक आइटम टाइप की वेटेज बता रखी है कि कौन सा आइटम टाइप कितनी वेटेज का है और उसका एक्चुअल में आपको फायदा क्या होने वाला है. ऑलराइट, जैसे स्पीकिंग में रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस की वेटेज सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्क्राइब, इमेज एंड रीड अ लेक्चर. राइटिंग में दोनों की है. रीडिंग में री ऑर्डर पैराग्राफ, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स और रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स. ऐसे ही लिसनिंग में सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट. इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है. ठीक है, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन एमसीक्यूज. ओके, टाइम मैनेजमेंट करके चलो. और बताओ. दैट्स इट. पिछे मुंडिया ने कुछ पूछना है? नो, तुसी पूछना कुछ? हो गया? ओके बच्चे, आपने कुछ पूछना है? आई एम सॉरी, आपने कुछ पूछना है? ओके गाइस, एवरी टाइम जब भी मैं कॉम्फर्ट के इंस्टीट्यूट में आता हूं, आई हैव सीन द रिजल्ट्स ऑन द नोटिस बोर्ड एंड एवरी टाइम इट मेक मी फील वेरी प्राउड कि कॉम्फर्ट में बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने डिजायरिंग स्कोर से ज़्यादा अच्छे स्कोर लिए हैं. और वो क्यों लिए हैं उसके पीछे रीज़न आपको पता है. बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँ यहाँ पे सेशन डिलीवर करने या मीटिंग के लिए, मुझे सबकी शक्लें याद है एंड आई वॉन्ट टू सी योर स्कोर्स ऑन द नोटिस बोर्ड विद द गुड स्कोर्स. आएंगे? आएंगे? 90 किस किस के आएंगे? जस्ट रेज योर हैंड. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. मैंने 0 इसलिए नहीं बोला बिकॉज 10 मार्क्स तो आपको फ्री में मिल रहे हैं. अगर आप कुछ भी नहीं बोल के आओगे तब भी कंप्यूटर आपको 10 मार्क्स देगा. ठीक है, हम फ्री में आपको 10 मार्क्स दे रहे हैं, बाकी की तैयारी आपको करनी है. बट मेक श्योर अगर आप 60 स्कोर कर रहे हो यहाँ पे मॉक टेस्ट पे, आई वुड रिकमेंड यू, जब तक आपके यहाँ पे 90 स्कोर नहीं आते हैं तब तक आप एग्जाम नहीं दोगे मॉक टेस्ट में. ऑलराइट, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए. ऑलराइट बच्चे, इधर उधर देखे हंसो मत प्लीज, मेरे साथ हंस लो. नहीं आएंगे तो मुझे पता है नहीं आएंगे, आपकी हंसी से पता लग गया. तो बट आ सकते हैं ना. मैंने आते क्या बोला था? स्कॉलरशिप कहां तक मिलेगी? 79. ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं मूवीज. अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं हुए तो ऑलराइट, सो यू नीड टू स्कोर अबव 79. करेक्ट. ऑलराइट, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, प्लीज डू लेट अस नो. ओके, alright, thank you so much guys, thank you so much, thank you for having me. मैंने बताया हुआ है रिपीट सेंटेंस एक कॉमन चैलेंजिंग थिंग्स होता है ना, उसमें हमें सब लोग एक रिपीट सेंटेंस में जो उसको आज भी बोला ये वर्ड मैं बोला था क्यों नहीं चुका है, उसका रीज़न पता चल गया और चेक कर राइट, इसका प्रोनाउंसिएशन. ओके सर, थैंक यू सो मच. Thank you so much. Just a second. Yeah. Can we come close? Thanks. Thank you. Okay. Thank you, Razik. Okay, I wish you all the best and give your chin up. ठीक है, हाई रखनी है. जिवें कोई भी क्लेश होवे तो ਤੁਹਾਡੀ एनर्जी आई नहीं है कि मैं अगले ਦਾ सिर पाड़ना ही पाड़ना. सो पीटी ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ. ऑलराइट, ਇਹਨੂੰ क्रैक करना ही करना है. ओके, गॉट इट? एम आई क्लियर? यस सर. थैंक यू, बाय बाय.